اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نورہ برڈن سوالی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی لائف جرنی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پر ریحان اسکول میں، ریحان فاؤنڈیشن میں کیسے کیسے لوگ ماشاءاللہ جمع ہیں، اور سارے جو بھی ہیرے موتی جمع ہو رہے ہیں سارے اتنے خوبصورت، اتنے بہترین ہوتے ہیں کہ ان کو سننے کو دل چاہتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور آج ہم ان کی لائف جرنی جانیں گے۔ یہ ان کا تعلق لاڑکانہ سے ہے، اور ماشاءاللہ یہ لاڑکانہ سے کراچی آئے ہیں صرف ریحان کالج میں داخلے کے لیے، ریحان کالج میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے، یہاں کی لائف جرنی سیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہترین رخ پہ لا سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ مولا بخش سمرو۔ تو انشاءاللہ ان سے ان کی لائف جرنی جانتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ الحمد للہ، اللہ پاک کا احسان ہے۔ آپ بتائیے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ مجھے جو کچھ تھوڑا سا معلوم تھا میں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ چھوٹا سا جی انٹروڈکشن دیجیے اپنا، تاکہ ہمارے لوگ جان سکیں، ہمارے ویورس کو پتہ چل سکے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور اس وقت کہاں ہیں۔ تھینک یو۔ جی 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 بالکل، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور ہمارا انٹرویو کیا۔ میرا نام مولا بخش سمرو ہے، مولا بخش کوٹنگ والا، اور میرا تعلق لاڑکانہ شہر سے قریب ایک ہمارا گاؤں ہے نصیر آباد، ادھر سے، اور میں ریحان کالج میں آیا ہوا ہوں 4 سالہ ٹرانسفارمیشن پروگرام کرنے کے لیے، اور میں انٹر کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ ادھر آتے ہوئے میں تقریباً 2.5 منتھ ہو گئے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ تو آپ کو یہاں آنے کے بعد کیسا لگا، کیا آپ کو محسوس ہوا، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی ابا بالکل، ادھر آتے ہوئے ادھر آج سے 2.5 مہینے تقریباً پہلے کہ میں ایک الگ تھا، 2.5 مہینے کے بعد کافی مختلف چینجز آئے مجھ میں۔ دیکھیں، آج سے تقریباً جب میں ادھر آیا تھا تو مجھے سب سے پہلے جو مجھے ایک یہ ہو رہا تھا کہ میں ادھر نہیں رہ پاؤں گا، میں ادھر سے بھاگ جاؤں گا، پتہ نہیں یہ کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، کہ کس طریقے سے ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ پتہ تو مجھے اے کے بارے میں تھا، میں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یوز کرتا تھا، لیکن یہ ایک مختلف سر ریحان اللہ والا کا انیشیٹو تھا ایک کالج بنانے کے لیے، جس میں آپ کو یہ چیزیں سکھائی جائے گی۔ تو یہ میں نے پاکستان میں آئی تھنک یہ پہلا کالج ہے ایسا، تو مجھے بہت پہلے سے ایک ہوا کہ میں یہ کیسا کالج ہے، میں نہیں جا پاؤں گا، جب کام نہیں ہو پائے گا۔ تو جب میں ادھر کالج میں آنے سے پہلے تو میں 0% کانفیڈنس تھا، مجھ میں بہت ایگو تھا ادھر آتے ہوئے، اور آج اگر 2.5 مہینے کے بعد میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو 2.5 مہینے میں ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوا، تو میرا جو ایگو لیول ہے میں سمجھتا ہوں میرا 0 ہو گیا ہے، اور میرا جو کانفیڈنس ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں کافی کانفیڈنس آیا ہوا ہے بات کرنے سے۔ انٹرویو کیے ہیں میں نے، لوگوں کے انٹرویوز میں دیے ہیں، کینوا پوسٹ بنانا سیکھا ہے میں نے، ٹیڈیکس کے ریویو دینا سیکھے ہیں میں نے۔ ادھر آ کے میں نے جو ہے ادھر سے پہلے میں کیمرہ کے سامنے بول نہیں پاتا تھا، ایون کہ میں جو ویڈیوز بناتا اپنی ٹک ٹاک وہ بھی میں پکچرس میں بناتا تھا، ویڈیو کے سامنے مطلب میں ایک شاعر تھا میں قسم کا۔ تو ادھر آ کے میں نے جو ریحان کالج میں یہ جو سیکھا، یہ کچھ کیے جو، تو میں کافی میرے اس میں جو چینجز آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے کافی کچھ سیکھا، بہت اچھا لگا، بہت زبردست۔ آپ یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر اچھا خاصا کچھ سیکھا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ جی اب ادھر جو مجھے لگتا ہے کہ ہم جب ادھر 4 سال کے بعد جب یہ ہمارا پروگرام کمپلیٹ کر لیں گے، تو اس کے بعد مجھے ایک لگتا ہے کہ ہمیں ایک اے آئی ایکسپرٹ ہوں گے، ہم ایک کوڈر ہوں گے، پروگرامر ہوں گے، اپنے خود کے اے آئی کی مدد سے ایک اچھی ویب سائٹیں بنانا، ایپلیکیشن بنانا۔ آج سے بعد ہم ایک اچھے بزنس مین ہو سکتے ہیں، ایک اچھے جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے آ کے ادھر سمجھا ہے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کیا کرتے رہے ہیں، کیا تعلیم حاصل کی ہے آپ نے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔
जी बिल्कुल अबा इससे पहले जो है मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। तालीम ज़्यादातर मेरी जो है वो गाँव से ही है। इससे पहले जो है मैं कराची में ही रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 70-80% जो 20 साल का मैं हुआ हूँ, तो कराची से ही मैं हूँ। क्योंकि हमारी फैमिली का एक असूल रहा है कि मेरे वालिद साहब का कि हम 8 महीने 10 महीने कराची में होते हैं, 2-4 महीने गाँव में थे, क्योंकि गाँव में हमारा कारोबार है अपना, जिसकी वजह से हम उधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। तो मैंने जो तालीम कुछ मुकम्मल की है वो गाँव से की है, कुछ इधर की है और इधर मैं जो हूँ इससे पहले मैंने शॉपिफाई के कोर्सेज़ किए थे। उस पे मैंने काम किया, मुझे मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने अमेज़न का कोर्स किया था, उस पे भी मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर आके मैंने रेहान कॉलेज जॉइन की थी। ये काफ़ी अरसे से मैं कराची में ही हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो तो आपको यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इसमें आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ा आ रहा है काम करने में। जब मैं नया आया था तो मुझे बस मैं रोज़ ये सोच रहा था सुबह होने दे मैं भागूँगा, सुबह हो तो मैं भागूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें देखो पहला बैच था कॉलेज का तो कुछ मुश्किलातें आई, कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल में मज़ा आ रहा है काम करने में, अभी भागने का दिल नहीं कर रहा। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आपको इन सब कामों में जो आपने अभी तक सीखे हैं, क्या सबसे ज़बरदस्त लगा? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊँगा कि इधर जाते हुए मुझे सबसे जो काम करने में जो अच्छा लगता है वो एक इंटरव्यू लेना लोगों से, कि हम लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। हम लोगों के ऊपर ये एक कनेक्शन बिल्ड होता है और हम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ये इस रिसर्च करते हैं। तो सबसे जो मुझे आसान और जो जिसमें मज़ा आता है काम करने में वो है कि इंटरव्यू लेना, और जो मुझे दूसरा जो लगता है वो आई थिंक टेडेक्स वीडियो का रिव्यू देना। चला, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कॉलोनी वगैरह भी करते हैं? जी कॉल एनी में अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं की। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे तो उस वजह से अभी तक कॉल एनी मैंने स्टार्ट नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोडिंग के टास्क में भी हूँ, क्योंकि कोडिंग भी मुझे जो अच्छे लगते हैं टास्क तो वो भी कर रहा हूँ, तो कॉल एनी अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं की। अच्छा, आपने कोडिंग का ज़िक्र किया, आप ये बताइए कोडिंग आपको कैसी लगी? अभी तक मैंने बुक 1 तो वो मैं समझता हूँ कोडिंग पहले मैं समझता था एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन जब से एआई आई है तो मैं समझता हूँ कोडिंग अभी बच्चों वाला खेल है, लेकिन आगे चलते-चलते पता चलेगा। अभी मैंने बुक 1 कंप्लीट की है कोडिंग की और बुक 2 में मैं आया हूँ। तो अभी तक मुझे जो है वो आसान लग रही है, सही लग रही है, समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये भी सही है कोडिंग भी हमारे मतलब की हमारे काम की ये भी हमसे हो जाएगी। सही है, माशाल्लाह। तो यानी कि आप ये समझते हैं कि काम बच्चों वाला है, आप आराम से कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि लोगों को आपकी अवेयरनेस दे सकते हैं? क्या ये काम ऐसा मुश्किल नहीं है जो लोग समझ रहे हैं और आगे नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह हो सकती है? आप कुछ बताएँगे? जी बिल्कुल, देखें मेरा जो एक सोच है, मेरी जो एक मुझे जो लगता है कि हम करने से पहले यही सोचते हैं कि ये इतनी मुश्किल होगी, ये हम नहीं कर पाएँगे, ये हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जो मैं अभी तक इधर इस टाइम में आके जो मैंने आके जो सीखा है सबसे पहले, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जब तक हम किसी गड्ढे में गिरेंगे नहीं या किसी तालाब में गिरेंगे नहीं तब तक हमें उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। तो जब तक हम उसमें आएँगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मुझे जो लगता है कि आज तक बुक 1 अभी मैंने कंप्लीट की है, बुक 2 मैंने स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि हाँ, कोडिंग सही है, आसान है। इतनी आसान भी नहीं है लेकिन सही है, कोडिंग कर लेगा बंदा, एक ज़हन होना चाहिए जो एआई की मदद से जो कोडिंग की जा सकती है। ओके, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह, आपका लाड़काने से ताल्लुक़ है, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले, आपके पड़ोसी जो कुछ कोई भी हैं, आप उन तक इस मामले में इत्तला पहुँचाते हैं कि वो भी आएँ और वो भी इन कामों को सीखें, क्योंकि आपने माशाल्लाह ये सारे काम किए हैं और सीख रहे हैं माशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि क्या लोग आना पसंद करेंगे? मेरा ख़्याल है इनका नेट चला गया है, जिसकी वजह से ये जी, बेटा। जी, जी, आपने मैं मेरा सवाल सुना? मैं द सवाल दोहराऊँ? नहीं,
सवाल दोबारा कीजिएगा क्योंकि नेट लाइट चली गई थी, इसकी वजह जी, से जी। वाईफाई बंद हो गया था। जी, मेरा सवाल ये है कि आप लाड़काना में माशाल्लाह रहे हैं, लाड़काना में आपके दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, रिश्तेदार होंगे, अड़ोस-पड़ोस होंगे, तो क्या आप उन्हें इस बारे में समझा सकते हैं? क्या वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? या आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए? जी, मेरा आवाज़ आ रहा है अभी? जी, आ रहा है बेटा। जी, जी। आपने बोला कि लाड़काना में रिश्तेदार और होंगे, उनको समझा सकेंगे। इस तक मैंने समझा, उसके बाद फिर से थोड़ा नेटवर्क की वजह से हो गया, तो माज़रत चाहूँगा अगर। कोई बात नहीं, ये तो प्रोसेस का हिस्सा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बात कीजिए बेटा। जी, जी, जी। सवाल मैं समझा नहीं आपका, मैंने आधा सवाल समझा, तो अगर आप दोबारा बताइए तो। जी, मैं ये कह रही थी कि आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आप अगर समझाएँगे तो क्या आप क्या समझते हैं कुछ लोग इस तरफ आने की कोशिश करेंगे? जी, बिल्कुल। मुझे जो लगता है कि मैं जो अपने आस-पड़ोस वालों को, अपने नेबर्स वालों को, काफ़ी लोगों को अगर मैं इस चीज़ पे अगर समझाऊँगा, पहले तो वो को थोड़ा-सा बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप काफ़ी इंटीरियर में जाएँ, काफ़ी देहातों में जाएँ, तो लोगों को यही लगता है कि ये क्या चीज़ है? तो उनको पहले समझाना पड़ेगा, काफ़ी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, लेकिन जो मैं समझता हूँ, आजकल के जो नौजवान हैं उनमें काफ़ी शऊर आ गया है, काफ़ी तालीम की वजह से। तो मुझे जो लगता है कि समझाने से वो थोड़ा-सा समझ पाएँगे। तो आप क्या समझते हैं क्या लेडीज़ को भी आगे आना चाहिए, उनको भी ये काम सीखना चाहिए ताकि हमारे पास जो लेडीज़ के लिए भी सिस्टम है कि वो भी यहाँ आके रह सकती हैं, 4 साल गुज़ार सकती हैं और ये मेरे पास इंतज़ाम किया गया है, तो क्या वहाँ से लेडीज़ आके मेरे पास रह सकती हैं और उनको यहाँ पर सीखने के लिए जो आपको सीखने को मिल रहा है, यहाँ पर सीखने को मिले, तो आप क्या समझते हैं क्या लेडीज़ भी तैयार होंगी? जी, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगा कि लेडीज़ को भी आना चाहिए। उनका भी ये हक़ तालीम में उनको भी आना चाहिए। ये जो पहले ज़माने का है, मैं जो समझता हूँ कि ले जो लोग की जो जिनकी सोच होती है कि लेडीज़ को, औरतों को तालीम ना दी जाए, ये एक जाहिलाना सोच है, ये एक गलत सोच है। तो मैं जो समझता हूँ कि लेडीज़ को आगे आना चाहिए और ज़रूर आएँगी। ये जो सर रेहान अल्लाह वाला का जो विज़न है, सर रेहान अल्लाह वाला ने जो किया हुआ है लेडीज़ के लिए, बॉयज़ के लिए, तो बिल्कुल अच्छा काम किया हुआ है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह सर की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी, रायगान नहीं जाएगी। लेडीज़ आएँगी, हमारी जो बहनें हैं, वो इंशाअल्लाह वो आएँगी और इंशाअल्लाह आईटी की फ़ील्ड में, एआई की फ़ील्ड में आगे बढ़ेंगी। इंशाल्लाह, ज़रूर, ज़रूर, इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा माशाल्लाह आप हमें ये बताइए माशाल्लाह आपकी समझ जो है वो बहुत अलग है और लोग आजकल इस सोच में नहीं हैं और इतना आगे नहीं सोच रहे। अच्छा ये बताइए माशाल्लाह मुस्तक़बिल जो है अब एआई का मुस्तक़बिल है और दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आप क्या समझते हैं कि चैट जीपीटी वग़ैरह ये इस्तेमाल अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो क्या पीछे नहीं रह जाएँगे? क्या उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आप इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए। जी, बिल्कुल। आजकल जो ज़माना है वो मॉडर्न है, टेक्नोलॉजी का, एआई का दौर है। जो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी एआई टूल्स है, मैं समझता हूँ वो काफ़ी पीछे है। मैं ये समझता हूँ वो दुनिया से भी पीछे है। इस दौर से पीछे है, ये जो दौर चल रहा है एआई का, टेक्नोलॉजी का, इससे बिल्कुल पीछे है। मैं उन लोगों को, आपकी तवज्जो से, आपकी ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि चैट जीपीटी यूज़ करना सीखें। चैट जीपीटी वो एक चीज़ है, आप उसको थोड़ा-सा प्रॉम्प्ट दें, अपने मसले का एक्स, वाई, ज़ेड, आपका कोई भी मसला है, उसको आप एक प्रॉम्प्ट दें, उसके आपको पूरा सॉल्व आ जाएगा। आपको जो कोई नहीं बता सकेगा, वो आपको चैट जीपीटी बताएगा। आप सिर्फ़ उसको यूज़ करना सीखें। 8 से 10 मर्तबा दिन में चैट जीपीटी से बातचीत करें, कोई भी बातचीत करें। किसी भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है पढ़ाई के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, आप उसमें प्रॉम्प्ट डालें, उससे बात करें। इवन जब वो वॉइस पे आ गई है बात करने के लिए, जैसे हम कॉल पे किसी से बात करते हैं, तो आप उससे बातचीत करें। आपके हर मसले का हल चैट जीपीटी है।
जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपनी रूटीन के बारे में मुझे बताइए कि कॉलेज में आपको क्या-क्या सिखाया जाता है और क्या क्या शेड्यूल है वहाँ का? जी बिल्कुल, सुबह को हम 6:30 बजे तकरीबन उठते हैं। उठने के बाद 6:45 तक हम अपनी रूम क्लीनिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद 6:45 से लेकर 7 बजे तक हम फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद हम फिर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और 8 बजे से पहले-पहले हमें जो है ब्रेकफ़ास्ट करना होता है, नाश्ता वगैरह करके 8:30 बजे हम जो है वो अपने कॉलेज में पहुँच जाते हैं क्लासरूम में। 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। 2 बजे से लेकर 3 बजे जो है हमारा इसमें लंच और शॉर्ट रेस्ट होता है, थोड़ा-सा ब्रेक का टाइम। वो करने के बाद 3 बजे से लेकर जो है हमारे फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें लड़कों की मुख्तलिफ इंटर्नशिप है। मुझे जो दी गई है सर रेहान अल्लाह वाला का जो एक विज़न था, रेहान बिरानी के नाम से एक सर की जो चेन थी, मुझे उसको मैनेज करने के लिए उसको मैनेजमेंट में मुझे डाला गया है और मेरी जो इंटर्नशिप है वो रेहान बिरानी पे है। तो इंटर्नशिप के बाद फिर बच्चे आते हैं, फिर आकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद फिर सर इमरान खान इंस्टीट्यूट वाला जो है सर इमरान से एक मीटिंग होती है, शॉर्ट मीटिंग होती है पूरे दिन के बारे में, कुछ मसाइल, कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद तकरीबन 10 बजे तक हमारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और हम सो जाते हैं। तो यही पूरे दिन की रूटीन है हमारी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह सारा दिन आप मसरूफ़ रहते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपसे क्या कहा गया? एक देना, एक लेना है या रोज़ाना एक इंटरव्यू करना है? क्या हिसाब-किताब है आपका? जी बिल्कुल, इंटरव्यू हमें लेना भी है, देना भी है। लेकिन जो हमारा काउंट होगा वो इंटरव्यू हमारा लेने वाला होगा, देने वाला काउंट नहीं होगा। लेकिन देना भी हमें है। कल शायद मंडे को सर इमरान से हमारी मीटिंग थी, तो सर इमरान ने हमें एक टास्क दिया था कि एक एक बच्चा जो है एक 1 वीक में 40 इंटरव्यू करेगा और सर का जो टास्क है वो हम समझते हैं कि सर ने जो लास्ट में जो टास्क दिया होगा, इसमें कोई ना कोई हमारे लिए भलाई होगी। तो हम जो है अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, दे कम रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंटरव्यू हम ले रहे हैं। तो हमें जो टास्क दिया गया है वो 40 इंटरव्यू हमें हफ्ते में पूरे करने हैं, 1 वीक में। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये तो अच्छी बात है आप ले रहे हैं। मेरा इंटरव्यू सिंधी में लीजिएगा आप जब भी ज़रूर, लें। ज़रूर, ज़रूर, चलिए ज़रूर सिंधी में माशाल्लाह। करते हैं। जी। जी, तो अब मुझे आप अपने हैबिट्स के बारे में बताइए, आपकी क्या-क्या आदतें हैं? खेल क्या कौन-सा पसंद करते हैं? कहाँ जाना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा जो हैबिट्स है वो सबसे पहले ये कि मैं मूवी वगैरह देखने का शौकीन हूँ और मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ। घूमने में मैं जो चाहता हूँ सबसे पहले मैं अकेला घूमूँ, सोलो ट्रैवलिंग वो मुझे पसंद है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घूम चुका हूँ, कराची से लेकर सक्कर तक काफ़ी एरियाज़ मैंने डिस्कवर किए, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ अकेले। तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। सोलो ट्रैवलिंग भी कुछ दोस्तों के साथ और मूवी देखना, और बस ये 1-2 आदतें हैं। सबसे ज़्यादा जो रीडिंग करना, बुक्स पढ़ना, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी पसंदीदा आदत है वो मैं समझता हूँ वो ट्रैवलिंग है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कोई गोल सेट किया है अभी तक कि भई मैं ये बड़ा अपना कोई बड़ा काम करूँगा, बड़ा रोज़गार करूँगा, क्या सोचा हुआ है? आपने कोई गोल सेट किया है आपने? जी बिल्कुल, मैं गोल तो हर बंदे का होता है, जिसके कोई ख्वाब नहीं होता, मैं समझता हूँ। तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन गोल होना लाज़मी है, एक अपने विज़न होना लाज़मी है, तो मैं आगे होके ये करूँगा। मैं जो समझता हूँ, मैं अपना गोल जो भी चीज़ रखता हूँ गोल है, मैं समझता हूँ एक गोल होना चाहिए, दूसरा मैं उसको बोलता हूँ स्क्वायर में, तो एक ना हो तो बंदा दूसरा कर ले। मेरा जो मेन गोल है कि मैं बड़ा होके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा, अपने मुल्क के लिए काम करूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। अगर वो ना हो सका तो एक अच्छा बिज़नेसमैन तो मैं बन सकता हूँ। लेकिन जो मेन जो है मेरा वो गोल तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन-कौन है? जी बिल्कुल, मेरे पसंदीदा जो शख्सियत है वो मेरे जो मेन मेंटर है वो सर रेहान अल्लाह वाला, आज़ाद चाय वाला, हिशाम सरवर, और जो मैं बुक्स में जिनको पढ़ता हूँ वो बिल गेट्स है, जिनकी सोच में, और आइंस्टाइन है, हमारे ईदी साहब है, जिन्ना हो गए। तो ये मेरे मशहूर जो शख्सियत है पसंदीदा। ज़बरदस्त।
चले माशाल्लाह। अब ये बताइए आपकी पसंदीदा डिशेस कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल, मेरी जो पसंदीदा डिशेज़ है वो सबसे ज़्यादा मैं देसी लवर हूँ। देसी भी मैं खाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस जिस जगह बन रहा है ट्रेडिशनल फूड भी मुझे पसंद आते हैं। जो भी ट्रेडिशनल फूड है, बिरयानी हो गई, आपका चिकन हो गया, हमारी मछली हो गई, जिसको हम पल्ला भी बोलते हैं, पल्ला हो गया। तो ये मुझे पसंद है, मटन और जो है मछली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और बिरयानी हो तो। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, आप घूमने जाने के लिए कौन से ममालिक को पसंद करेंगे? कहीं अगर आपको जाने का इत्तेफ़ाक पड़ता है, आप सोचें कि हम मैं फ़लाँ मुल्क में जाऊँ, फ़लाँ मुल्क देखूँ, क्या सर्च करना चाहते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह पहले मैं सऊदीया रह चुका हूँ उम्रा करने थी, तो मेरा जो बार-बार दिल करता है सऊदीया, ईरान, इराक सवारी करने पे। तो मुझे यही पसंद आते हैं और मेरी जो दिल की ख्वाहिश है मैं कि इंशाअल्लाह मैं फ़लस्तीन विज़िट करूँगा, फ़लस्तीन घूमने का मुझे दिल कर रहा है। बैतुल मुक़द्दस देखने का मुझे शौक है। तो यही जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो ज़्यादातर मुझे घूमने का शौक है। अच्छा माशाल्लाह। आप ये मुझे बताइए माशाल्लाह, जो कुछ सीख रहे हैं तो इसको कैसे आगे फैलाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो मैं सीख रहा हूँ सब कुछ अभी तो हमारे सीखने का मराहिल चल रहा है। उसके बाद मैं जो मेरी जो कोशिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए इंस्टीट्यूट वगैरह सबसे पहले तो मैं जो मेरा जो मेन गोल है कि अगर मैं इंस्टीट्यूट वगैरह ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा और उसके अलावा मैं एक इंस्टीट्यूट अपनी तरफ अपने गाँव में की तरफ जो है वो खोल के और अपने गाँव वालों को एआई की सिखाऊँगा। तो यही मेरा जो मेन गोल है कि मैं यही करूँगा। ऑनलाइन भी आजकल पूरी दुनिया ऑनलाइन है, यूट्यूब पे फेसबुक पे वो भी करूँगा। उसके साथ-साथ मैं एक अपना इंस्टीट्यूट भी खोलने का जो है मेरा शौक है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह। आप क्या चाहेंगे कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में या बाहर मुल्कों में लोग एआई के साथ किस तरह जुड़ें? क्या उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे, बेहतरीन पैगाम जो लोग आने चाहें और आएँ इस तरफ ताकि हमारे मुल्क को तरक्की मिले, हमारे लोगों को खुशहाली मिले? क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? जी बिल्कुल, मैं उन अपने ओवरसीज़ भाइयों को जो हमारे इवन के पाकिस्तान में रहते हैं उनको यही पैगाम दूँगा कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। आएँ टेक्नोलॉजी सीखें। बैठ के सोने से, सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ करने को जब तक आप उसमें किसी चीज़ में गिरेंगे नहीं, जब तक आप किसी तालाब में मैंने आपको पहले ही बताया गिरेंगे नहीं, तब जाओ उसकी तो आपको उसके साइज़ का कैसे पता चलेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप जब तक सीखें, सीखने के लिए आप बहुत सी स्किल सेट टेक्नोलॉजी है वो आए सीखें। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि रियान अल्लाह सर रियान अल्लाह वाला का जो विज़न है कि टेक्नोलॉजी में एआई सिखाना, आप वो आएँ, वो जॉइन करें और खुद सीखें, अपने मुल्क के लिए करें। आजकल पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी टॉप पे पाकिस्तान पीछे है लेकिन जो सर रियान अल्लाह वाला का जो इनिशिएटिव है, कुछ लोगों का जो इनिशिएटिव है जिसकी मदद से कुछ पाकिस्तान में ये आ गया है टेक्नोलॉजी का, तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि सीखें। ये जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी सीखें। जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त आपने इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छा लगा और इंशाअल्लाह हमारा मुल्क बहुत जल्द तरक्की करेगा और दुनिया तरक्की करेगी। बहुत तेज़ी से ये एआई का दौर आगे बढ़ रहा है और हमें चाहिए कि हम भी इसके साथ चलें और इसको अपना इसके ग़ुलाम बनने की बजाय इसको अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एआई जो है अगर आ जाएगा, छा जाएगा और हमने कुछ नहीं सीखा होगा तो ये हमें मिसमार कर सकता है। तो हम इससे पहले कि हम इसके कंट्रोल में आ जाएँ और ये हमारी नौकरियाँ खा जाए या हमारे लिए कुछ बाकी ना बचे, इससे बेहतर है कि हम अपने आप को इससे रूशनास करा लें, इसको जान जाएँ, इससे इससे सबक ले लें और ये सबक हमें जो देगा वो हमारे लिए मिशल-ए-राह बन जाएगा और
आगे लोगों को भी हम हाथ पकड़ के लेके चलें, क्योंकि ये दौर वो नहीं है कि किसी की टांग खींच लो और किसी को पीछे गिरा दो और आगे बढ़ जाओ। वो इस तरह से आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने किसी भी रिश्तेदार को हाथ पकड़ के साथ नहीं लेकर आते, आप भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि हमें मिलकर काम करना ज़रूरी है इस दौर में, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है एआई से है और एआई बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। हमें चाहिए हम एक दूसरे का साथ दें टांग खींचने के बजाय, और बहुत आगे बढ़ना है तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ मिलाएं जो आपके हम ख्याल हों, और उनके साथ मिलके आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक साथ मिलें, एक साथ जुड़ें, एक साथ बैठें और एक साथ सीखने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द कामयाब हो सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम अगर हमने ये कर लिया तो हम बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी तरक्की कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आज मौला बख्श थे जो माशाल्लाह इतने समझदार हैं। इन्होंने हमें इतना बेहतरीन इंटरव्यू दिया। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।